Hello everyone. Today I welcome you all again to my channel, that is Ikjot Nursing Academy, and today we are going to discuss one topic from psychology, and it is important for both GNM, BSc nursing and post basic students also. It is a common topic in psychology, that is theories of memory. And already one student commented me that please ma'am, please make a video on this topic. So on demand I am making the topic, and sorry for the student that I am making this video very late because of some health issues. From last few days I am not making videos. So now I will again welcome you all to my channel, and we will start the topic without wasting our time. So theories of memory, as we already discussed memory in my previous video. If you don't listened or seen that video, you can go to my channel and see that video, and today we will discuss only the theories of memory. So we will start. Introduction is theory. Memory consists of remembering what has previously been learned. What is memory? Memory is just what we are learned already, and we are now need to recall that part. That is which how we are able to recall that things, because of our memory. We are having three types of memory. So that is long term memory, short term memory, intermediate memory. So that we already discussed in another video. So here we are not going to discuss, but the main part is what is memory. memory क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में, मेमोरी जो भी चीज हम याद रख पाते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं और हम उसको याद कर लेते हैं, दैट पार्ट इज दैट इज स्टोर्ड इन अवर मेमोरी. अगर हम किसी चीज को भूल जाते हैं तो मीन्स वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हुआ, हम उस चीज को भूल गए. लाइक वेरी इजी एग्जांपल्स. if we open a cell phone to dial a phone, so nowadays there is not a time of dictionaries and all, or directories. So what we are using, telephone directories are not available nowadays. We are using our mobile phones only. So just we see that number, 10 digit numbers are very common numbers for mobiles. So we just 98165431 whatever it is. So we just dial that and we forgot that. उसके बाद हम भूल जाते हैं, हमारी उस पर्सन से बात हो जाती है जिससे हम बात करना चाहते हैं, तो मीन्स हम उस इंफॉर्मेशन को याद रखना ही नहीं चाहते थे, इस वजह से हम उसे भूल गए. वो क्या था हमारे लिए, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी ने उसको रिकॉल किया कुछ मिनट्स के लिए, सेकेंड्स के लिए. जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया हम उसे भूल गए. बट जब कोई चीज हम याद रखना चाहते हैं, लाइक आप लोग अब पढ़ रहे हो, आपको अपने एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसको प्रिपेयर करोगे कि हाँ हमने अपने फाइनल्स में उसको लिखना है, आंसर्स को लिखना है, तो आप उसको अगेन अगेन रिकॉल करोगे और वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज memory. Okay, so we are having basically three main theories of memory which we are going to discuss, and which are in the syllabus of BSc nursing, post basic nursing and GNM also. So first is theory of journal memory function. First theory क्या है? theory of journal memory function means journal memory काम किस तरीके से करती है. जैसा थ्योरी का नाम है वैसा ही उसका प्रॉपर आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे कि थ्योरी जर्नल प्रिंसिपल पे काम करती है. तो वो जर्नल प्रिंसिपल क्या है, जर्नल मेमोरी फंक्शन क्या है, वो होता कैसे है. सो थ्योरी ऑफ जर्नल मेमोरी फंक्शंस फोकस ऑन थ्री प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी. तीन चीजों पे काम करती है. फर्स्ट इज इनकोडिंग, सेकेंड इज स्टोरेज एंड थर्ड इज रिट्रीवल. तीन चीजों पे काम करती है. जो हमारा जर्नल मेमोरी फंक्शन है वो किन तीन चीजों पे फोकस करता है? थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. थ्री पार्ट्स क्या है? इनकोडिंग है, स्टोरेज है और रिट्रीवल है. फर्स्ट इज इनकोडिंग. अब हम देखते हैं इनकोडिंग क्या है. इनकोडिंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ कोड विच कैन बी स्टोर्ड, जिसको हम स्टोर कर पाए. तो क्या हुआ? प्रोसेस
किस चीज को हम इनकोडिंग बोलेंगे? जब एक प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं सेंसरी इनपुट, कहाँ से? कहीं से भी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई बात सुन रहे हैं, अपने ईयर्स का यूज कर रहे हैं, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम अपनी आईज का यूज कर रहे हैं, कुछ भी चीज जो जहां से भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज अ पार्ट दैट इज नोन एज इनकोडिंग। हम उसको इनकोडिंग पे पार्ट पे यूज कर रहे हैं, विच कैन बी स्टोर्ड, जिसको हम स्टोर कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट पे कन्वर्ट होगा, दैट इज स्टोरेज। अब स्टोरेज की बात जैसे स्टार्ट हुई तो हम सेकेंड पॉइंट पे पहुंच गए, स्टोरेज। इनकोडिंग मीन जस्ट इट इज अ ट्रांसफर ऑफ मैसेज। Storage is a process of actual putting coded information into memory. अब storage क्या है? It's a process of actual putting coded, जो हमारी information है, जो हमें कोडिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हम उस इंफॉर्मेशन को अब क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, एक्चुअल कोड कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टोरेज। It is a process of actual putting coded information into memory, means हम उसको storage में convert कर रहे हैं, memory में convert कर रहे हैं। Next is retrieval. Retrieval means अब हम उसको कैसे याद कर पाएंगे? It's a process of gaining access. अब हमने जो चीज हमारी स्टोरेज में, हमारी मेमोरी में फीड कर दी, हम उसको अब दोबारा भी तो याद करेंगे। हम उसको कुछ ना कुछ, हमारी मेमोरी में उसका कुछ ना कुछ नाम जाएगा, जो भी वो टॉपिक होगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माइंड में अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसी पार्ट पे जाएंगे कि हाँ मुझे तो डिफेंस मैकेनिज्म पूछे गए हैं, वेरी कॉमन टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो तब हम सोचेंगे अच्छा हाँ ये वाले डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। तो क्या है? मीन्स हम गेन करेंगे, असेस करेंगे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को, कोडेड इन्फॉर्मेशन को। वो हमारी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, कोडेड इन्फॉर्मेशन है, हमने डिफेंस मैकेनिज्म्स पहले से याद किए हुए हैं। तो अब जब हम उसको रिट्रीवल करेंगे, मीन्स हम उसको रिकॉल करेंगे, जब हमसे कोई पूछेगा तो हमें जब जरूरत उसकी कब पड़ी? जब हम एग्जाम में हमसे पूछेंगे, हमारे टीचर ने हमसे पूछे, या कहीं पे भी हमने यूज करने हो, तो दैट इज रिट्रीवल। मीन्स जो फर्स्ट थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ है मेमोरी की, फर्स्ट थ्योरी है, वो 3 पार्ट्स में काम कर रही है, दैट इज इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट थ्योरी। Now we are moving to the second theory. Second theory is information processing theory. Means information process होती कैसे है? Storage तक, लास्ट पॉइंट तक, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेमोरी कन्वर्ट कैसे होती है? जैसे इसका नाम है थ्योरी का, वैसे ही इसके हम पार्ट्स को लर्न करेंगे। जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी जब भी आपको आएगा एग्जाम में, आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए? कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले हम सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करके हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, चाहे वो आईज हैं, चाहे वो ईयर्स हैं, चाहे हम सुन रहे हैं ईयर्स की हेल्प से, चाहे हम रीड कर रहे हैं अपनी आईज की हेल्प से, चाहे हम टच करके कोई चीज देख रहे हैं, कुछ भी हम सेंस ऑर्गन्स को यूज करके जब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मीन उसको प्रोसेस करेंगे कि वो मेमोरी तक पहुंचेगी। पूरे प्रोसेस को एक सेकेंड वे में इस थ्योरी ने बताया है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड ने डेवलप की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मेमोरी स्टार्टेड विद मेमोरी इनपुट। मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हमारे पास कुछ इनपुट आता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो हम उसके लिए काम करेंगे। जब भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो हम उसको याद करेंगे। अगर हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं आया याद करने के लिए तो हम क्यों याद करेंगे? अगर हमें कोई चीज यूजफुल ही नहीं लगी, हम क्यों चीजें याद करते हैं? आप स्टडी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आपका ये सिलेबस है, आपको इस एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसीलिए आप याद कर रहे हो, क्योंकि आपको स्कोर करना है। सो सेंसरी एनवायरनमेंट में जब हमारे पास कुछ इनपुट आएगा तब हम जो है ये थ्योरी स्टार्ट होगी। दिस इनपुट इज हेल्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। जो इनपुट होता है हमारे पास वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, सेवरल सेकेंड्स इन सेंसरी रजिस्टर। सेंसरी रजिस्टर में ये कब तक रहता है? बहुत कम समय तक रहता है। विद द हेल्प ऑफ सेंसरी चैनल। सेंसरी चैनल्स क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स। ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, लाइक वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स, वी कैन यूज 5 ऑल्सो, सो लाइक विजन, टच, हियरिंग, एवरीथिंग। सो
information that is recognized in sensory register may be passed to short term memory. जब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी रजिस्टर कोई इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को पास कर देते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में. वहां क्या होता है, वेयर इट इज हेल्ड फॉर 20 to 30 सेकेंड्स. शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी देर की होती है, 20 to 30 सेकेंड्स की होती है. तो वहां पे ये मैसेज जो है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो 20 to 30 सेकेंड्स तक रहती है. उसके बाद some of the information reaching short term memory is processed by being rehearsed. अगर हम उसको रिहर्सल करेंगे, उसको याद रखना चाहेंगे, तब उस इंफॉर्मेशन को हम आगे पहुंचाएंगे, नहीं तो वो वहीं से खत्म हो जाएगी, हम उसे भूल जाएंगे. ओके, इंफॉर्मेशन दैट इज रिहर्सल्ड इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. जब हम उसको आप एक डेफिनेशन भी एक बार पढ़ोगे, एक सेंसरी ऑर्गन ने आपने आईज ली का यूज किया, एक डेफिनेशन पढ़ी, आप उसे भूल जाओगे. जब तक आप उसे पर्टिकुलर फोकस नहीं करोगे, उस इंफॉर्मेशन को याद नहीं करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगी. द इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM is long term memory and STM is short term memory. So LTM will be organized into categories where they may reside for days, वो days तक भी वहां रह सकती है, months, years और for lifetime. इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. हम कुछ डेफिनेशन याद करते हैं. मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने GNM फर्स्ट ईयर में एक डेफिनेशन याद की थी, और डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो मुझे आज भी याद है. दैट इज टॉक ऑफ 2005. ठीक है, तो क्या है, उसको मैंने इतना रिकॉल किया, वो मेरी पर्टिकुलर लाइफ टाइम की मेमोरी में सेव हो गई है. कुछ डेफिनेशंस हैं, जब तक हम एग्जाम्स देते हैं तब तक के लिए हम याद करते हैं अपने सब्जेक्ट की, और उसके बाद हम भूल जाते हैं. कुछ मंथ्स तक वो स्टोर रहती हैं. क्यों, हम उसके बाद उसको क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उसको चीज को रिकॉल ही नहीं करते कभी. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल द मेमोरी इज स्टोर्ड. अगर हम उसे चाहते हैं, हम अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलते. क्यों, क्योंकि वो हमें पता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस. हम अपने पेरेंट्स का नहीं भूलते, अपने सिबलिंग्स का नहीं भूलते, अपने फ्रेंड्स का नहीं भूलते, जिसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं उसका नहीं भूलते. तो मीन्स हम अपनी मेमोरी, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी वो डेट्स जो हैं वो सेव हो जाती हैं, और जिसको हम रिकॉल नहीं करना चाहते वो हम नहीं भूल. तो ये है हमारी सेकेंड थ्योरी, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड थ्योरी एंड द लास्ट थ्योरी, दैट इज लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी. अब इन्होंने क्या किया है, प्रोसेसिंग को ही एक लेवल्स में डिवाइड कर दिया. इन्होंने क्या किया, थर्ड थ्योरी जो दी है उसमें उन्होंने लेवल्स बना दिए हैं प्रोसेसिंग थ्योरी के. तो लेवल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेमोरी अकर्स ऑन अ कॉन्टिनम. मेमोरी कहाँ पे यूज हो रही है, कॉन्टिनम में. फ्रॉम शैलो टू डीप. पहले क्या होती है, शैलो में सुपरफिशियल होती है, फिर ये डीप में कन्वर्ट होती है. विद नो लिमिट ऑन द नंबर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स. इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि हमें इतने ही नंबर याद होंगे, इतने नहीं होंगे. हम सिर्फ 10 नंबर्स ही याद कर सकते हैं, हम 100 नंबर्स ही याद कर सकते हैं, हम 1000 ही कर सकते हैं. ऐसा कुछ लिमिटेशंस इन्होंने नहीं दिया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, शैलो और सुपरफिशियल लेवल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिटी ऑफ फिनोमेना. These may be associated with a word or a image. Means according to this theory, superficial जो storage information है वो किसके लिए यूज होती है, बेसिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन. हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. इट मे बी वर्ड, इट मे बी एनी इमेज, इट मे बी एनी पर्सन, एनीथिंग. वो क्या है, हम किसी को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी मेमोरी कौन सी यूज होती है, सुपरफिशियल मेमोरी यूज होती है, सुपरफिशियल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन यूज होती है. सेकेंड इज shallow level involves analysis in the term of physical or sensory characters such as brightness or pitch. Means जो shallow level है
जो शैलो लेवल इन्वॉल्व क्या करता है, एनालिसिस करने में इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एनालिसिस भी करता है, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के भी एनालिसिस करता है। मींस अगर वो किसी चीज को देख रहा है, ब्राइटनेस देखेगा उसकी, अगर हम किसी वर्ड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हम उसका देखेंगे कि हाँ ये वर्ड कितने अच्छे से लिखा हुआ है, वो विजिबल है प्रॉपरली और नहीं है। अगर हम किसी पिक्चर को किसी वीडियो को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं, तो हम देखेंगे इसकी पिच कैसी है, इसकी ब्राइटनेस कैसी है, स्पीकर कैसा बोला। तो दैट इज ये हमारे किस में आ रही है, शैलो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें कॉन्टिनम में जो है ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल पे जाके क्या होता है, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ मेमोरी रिलेट्स टू रिकॉग्निशन एंड लेबलिंग। अब इंटरमीडिएट लेवल तक जब पहुंचता है तो क्या करता है, मेमोरी जो है वो स्टार्ट कर देती है रिकॉग्नाइज करना, अच्छा हाँ ये पर्सन है या ये आइटम है, ये इसकी लेबलिंग कैसे है, ये अच्छी है या नहीं है, ये बेटर क्वालिटी है, वर्स क्वालिटी है, वो चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। द डीप लेवल इज द स्टोरेज। डीप लेवल को बोला है कि हाँ अब जब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि लेबलिंग कर लिया कि हाँ ये बेटर है कि बैड है कैसा है, तो उसके बाद ही तो वो स्टोरेज ऑफ मीनिंग पे जाएगा ना, तो थर्ड लेवल पे जाएगा ब्रेन। तो वो क्या करेगा, डीप लेवल इज द स्टोरेज ऑफ मीनिंग एंड नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन, डीपर प्रोसेसिंग रिजल्ट इन लॉन्ग लास्टिंग। अगर वो डीपर में कन्वर्ट होती है तो वो लॉन्ग लास्ट के लिए स्टोर होगी, स्टोरेज जो होगी वो लॉन्ग रन के लिए चलेगी। दिस इज द थर्ड थ्योरी, दैट इज लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, जिसमें कि उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग बोले हैं मेमोरी के। फर्स्ट इज शैलो, सेकेंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज डीप। डीप is the last and where the particular the information or the component is stored for long lasting time, for a long time. This is all about the theories of memory. Thank you so much for listening, and if you are new to my channel, please subscribe my channel. You will get notified for the new videos and help me also to grow. And if you want any other videos also like this on any topic, you can message me. I will always ready to help you all. Thank you so much, and thank you so much to those who are giving so much of love and concern, that they are liking my videos. It help me to grow and motivate me कि मैं videos दोबारा बनाऊं। बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक कर रहे हैं, अगर वो कुछ डिमांड कर रहे हैं तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो प्लीज़ डू द सेम, कंटिन्यू एंड stay safe also, study well and stay at home if you are not going to your concerned area. So please stay at home and stay healthy, because COVID-19 is very at peak levels nowadays again in the second war. So please stay healthy at your homes and continue study for your exam. Best of luck to all for your upcoming exams also. Thank you so much for watching. Thank you so much.